So one of the problems that I saw when somebody asked me in the Slack में chat में कि यार sir do other things don't have oxidation numbers like phosphate was an exception, and what that question highlighted to me was the understanding that maybe people don't realize that a whole ion doesn't have an oxidation state, and oxidation states are assigned by us, and ions may, each element might have an oxidation state but not the whole ion itself. So meaning इसमें भी individually oxidation states होंगे phosphorus के और oxygen के, and the sum of their oxidation states is the charge in oxidation state format. It's not saying कि phosphate का oxidation state is -3. It is saying that the sum of the oxidation states of the elements in phosphate equals to -3. So technically I'm correcting the philosophical definition of it. Oxidation states are man-made, hence there are some rules, and never forget those rules. And the rules were always that group 1, 2 and 3 are +1, +2, +3. Fluorine is -1, oxygen -2, hydrogen +1. उसके अलावा आप सबका वर्कआउट करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है? And the thing with that is that you have to be able to deduce oxidation states by looking at reactions, by looking at oxidation numbers. Another thing was that people are still using the removal of oxygen and addition of hydrogen as probably evidence for oxidation and reduction in the homework that they have submitted. Please stop doing that. The only two acceptable ways of deducing oxidation and reduction are: number one, the most universal, which is oxidation state, and number two, by electron transfer. The electron transfer only works for ionic compounds, so they can not always work, but generally speaking, everything else you gotta work out. Everything else you gotta work out using oxidation states. For example, okay, there is a reaction of chlorine with oxygen, and you might have never seen this, but this is Cl2O like this. Now either I can balance this by oxygen being half, or I can say नहीं भाई मुझे तो नहीं half पसंद, मैं इस तरह करता हूँ, and in that case it will be 2ClO2. Now in such cases you have to apply the rules. The rules are that uncombined elements are always going to be 0. When I say uncombined elements, I don't mean कि वो diatomic नहीं हो सकते. I mean कि उसके अलावा और कोई element है ही नहीं. यहाँ O के अलावा कोई और element है ही नहीं, even though 2 O के हैं. इसमें Cl के अलावा कोई element है ही नहीं, और Cl का भी 0 है यहाँ, 2 times 0 नहीं है. और मैं इनकी बात करता हूँ तो इसमें अगर ऑक्सीजन -2 हुआ और 2 Cl हैं और दोनों का टोटल Cl2O का 0 होता है. Again, sorry, not that 2, not this 2. Let me delete that. Sorry. So when so the idea is that this 2 comes from right here and Cl is X. The coefficient of the equation has got no bearing on the oxidation states, even in the summation part. Summation part हम सिर्फ Cl2O का देखते हैं इसका, और उसमें अगर इस पूरे का सम 0 है और 2 Cl हैं, ईच का X है और 2 Cl का क्या हो सकता है कि टोटल 0 आए. तो each Cl is here, if you work out the math, is going to be +1. So here chlorine is +1, and then people say नहीं सर, because अगर O -2 है तो क्लोरीन भी तो +2 हुआ ना. नहीं, दोनों क्लोरीन का मिला के सम हो सकता है +2. क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +1 है यहाँ. So that's a lot of distinction that people start needing to make about this kind of stuff. All right? Okay. No, you do not. I didn't even mention that yet. So Zair Khan, no. So after on the oxygen, we'll move on to balancing half equations, right? Yes, Vania, absolutely. That's what we're doing, and we're going to do balancing equations by using half equations and oxidation states both. There are 2 ways to do this. All right? Yep. So basically the idea was that you have to figure out oxidation states in reactions, and that's the game. ठीक है, कि आपने oxidation states निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं.
इफ़ यू जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं निकालता हूँ मैं क्या करना था. Okay. Any other questions that I'm just skipping? Okay. All right. So, acha, sometimes, and this is by the way using the idea of oxidation states, you can even find the oxygens in an oxidation state. नहीं अब्दुल अहद, क्लोरीन इज नॉट -1 ओनली. ये कौन से, सी ओके, आप लोगों को ना जो चीज़ मैं बताऊं अज्यूम करो वो ज़्यादा सही है जो ओ लेवल्स में पढ़ी थी. मैंने आप लोगों को रूल्स दिए थे. आई बिलीव मैंने क्लास में बताया भी था कि एग्जांपल्स दिखाए थे कि क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फ़र के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए थे आप लोगों को मैंने. इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नहीं. ये देखें, क्लोराइड आयन में क्लोरीन -1 है, क्लोरीन में क्लोरीन 0 है. अभी हमने कैलकुलेट किया, आपने कैलकुलेट किया यूजिंग द रूल्स कि ये +1 है यार. और ClO- में और ClO2- में और ClO3- में और इवन ClO4- भी होता है बाय द वे. इसमें ये है +1 है, ये है +3, यहाँ Cl+5 है, यहाँ +7 भी है. कितने हो गए Cl के ऑक्सीडेशन स्टेट्स? हैं, बिल्कुल है. ये जो आपने सिर्फ नहीं, जो आप बोल रहे हो आप क्लोराइड आयन की बात कर रहे हो. एंड प्लीज़, एंड आई हैव ऑल्सो हैड समबडी आस्क मी कि यार Cl2 aqueous, they were assuming Cl2 aqueous is the same thing as Cl minus aqueous. नहीं, ये मॉलिक्यूल है और ये आयन है, बहुत बड़ा फ़र्क है. ये आप हर दिन खाने में खाते हो और आप इसको पी लोगे ना तो आप मर जाओगे, ये याद रखना. ये खाने में डलता है नमक में और ये ब्लीच कहलाता है, जो आप जिससे आप स्विमिंग पूल में लोगों को मारते हो, मतलब केमिकल्स को और जर्म्स को मारते हो, और आपने इतना पी लिया तो आप अपने आप को ही मार सकते हो. आयन और एलिमेंट में बहुत फ़र्क है, बिल्कुल, आई नो. और यही बात सोडियम सॉलिड से कर लें और सोडियम आयन से कर लें, जो सोडियम क्लोराइड में होता है. ये भी आप हर दिन खाते हो. आपके सेल्स को सोडियम की इतनी ज़रूरत है कि सारी की सारी आपकी नर्व इंफॉर्मेशन दैट पासेस थ्रू योर बॉडी इज़ थ्रू सोडियम एंड पोटेशियम आयंस. इट बैलेंसेस, दैट बैलेंस की वजह से ही आपका नर्वस सिस्टम चलता है, विच इज़ हाउ यू पास ऑन ऑल सिग्नल्स फ्रॉम ऑल मसल्स टू योर बॉडी. बट जो ये साहब हैं जिनमें सिर्फ फ़र्क क्या है, इन दोनों में सिर्फ फ़र्क क्या बाय द वे, एंड दैट्स द डिफरेंस. आई थिंक पीपल डोंट अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ और द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री. दोनों में 11 प्रोटॉन हैं. फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें एक कम है, और उस एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही ये चीज़, ये स्पीशीज़ जिसको मैं अभी ब्लू हाईलाइट करूँगा, ये स्पीशीज़ सोडियम एटम कहलाती है, और जिसको मैं ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ वो सोडियम आयन कहलाती है. एटम और आयन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ये आपकी जिस्म में पाया जाता है, और अगर आपने इसको अपने जिस्म की हथेली में भी रख लिया ना, हाथ में कहीं चिपक गया आपके पास, तो बहुत बड़ा सुराख हो जाएगा आपके जिस्म में. क्यों? बिकॉज ये रिएक्ट करेगा आपके स्किन के पानी से, वाटर वेपर से, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और गर्मी प्रोड्यूस करके आपके उस उंगली का पार्ट को जला देगा. ये आप हर दिन इस्तेमाल करते हो, यह आपके जिस्म में पाया जाता है, आप खाने में खाते हो, ये आपको मार देगा. सेम विथ फ्लोरीन और फ्लोराइड. आपके सुबह हर जो अच्छे बच्चे हैं वो अपने सुबह दांत मांजते हैं, ब्रश करते हैं. वो जब ब्रश करते हैं तो उनके ब्रश में फ्लोराइड का पाया जाता है. फ्लोराइड को कभी फ्लोरीन से कंपेयर मत करना. इवन दो द एलिमेंट माइट सीम द सेम, वो एलिमेंट, वो एटम है, वो आयन है. ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इन द वर्ल्ड है. मतलब ये इससे भी ज़्यादा तेज़ है. मतलब F2 इतना तेज़ है कि आपकी सोच है, ये कभी मिलेगा ही नहीं. F2 सिर्फ मिलेगा फ्लोराइड में, और ये आप हर दिन इससे दांत साफ़ करते हो और कुछ नहीं होता. इससे आपने दांत साफ़ कर ली तो आपके दांत ही गिर जाएंगे आपके गम से. दैट्स हाउ रिएक्टिव दैट इज़. And the reason why I'm highlighting these gross or very loud differences is that because that's how we'll understand कि यार that shit is very different. This shit is very different than this shit. This ion and element are very, very different. Ion and atom are very, very different. So when you mention something, you have to mention what type of species are you talking about. किसी ने लिखा क्लोरीन -1 है. क्लोरीन -1 नहीं है,
क्लोराइड आयन में क्लोरीन -1 है, तो सिर्फ इस फॉर्म ऑफ क्लोरीन में क्लोरीन -1 है, इस फॉर्म में 0 है जिसको हम Cl2 बोलते हैं, और Cl2O जिसको हमने अभी कैलकुलेट किया, बिकॉज हमें पता है कि O हमने ऐसा, ये नवंबर ऑक्सीडेशन से हमने ईजाद किए हैं, ये चार्जेस नहीं हैं. जो चार्जेस की बात करते हैं, क्लोराइड इज 1-, दैट एक्चुअली हैपन्स. दिस इज द वन दैट एक्चुअली हैपन्स दैट वी सी हैपनिंग, गिविंग अप इलेक्ट्रॉन्स. ऑल ऑफ द रेस्ट आर इन देमसेल्व्स कोवेलेंट इन नेचर, उसके अंदर. सो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर आवर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ, हमने कहा यार चलो बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है. और जब हम अज्यूम करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, तो हम अज्यूम करते हैं कि जी ऑक्सीजन इज़ द वन दैट इज़ हंग्री फॉर इलेक्ट्रॉन्स. एंड ये हम आगे जाके बॉन्डिंग में करेंगे. एंड द रीज़न वाई ऑक्सीजन इज़ हंग्री फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज़ बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव. It's more electronegative than any of the other guys except for fluorine. So even though इन दोनों में दोनों कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, हम चार्ज -2 का देते हैं ऑक्सीजन को, बिकॉज हमारे लिए रूल के मुताबिक हमने दिया हुआ है इसको -2, और इसको देते इसलिए -2 हैं बिकॉज हमें पता है बिटवीन द टू ऑफ देम ये मोर नेगेटिव है. एंड दैट्स द थिंग दैट वी विल हैव टू रिमेंबर. ओके, सिंस nobody is saying anything, I'll talk about some more examples. And the idea is that this, if your underlying clarity doesn't exist for elements, then it's going to be harder to understand the complex chemistry that we're going to do in A levels. Now I'm going to give you some examples. And what the idea would be, we want to be able to use oxidation states to figure out which element is undergoing oxidation and which element is undergoing reduction. Now here is an example. Now if you notice the way I've written the molecules, the question will be about nitrogen mainly, because hydrogen is always +1, so that's not anything to worry about. Oxygen is -2 except for when it's in peroxides, and here is we've seen a peroxide. So I know, knowing my theory, that if hydrogen is +1 and peroxides में, peroxide क्या होता है, जहाँ O2 होता है, clearly this is a peroxide because H is +1 and you have 2 of them, and you have 2 of O's. So if you do that math, you know, if there are 2 +1s and there are 2 oxygens we do not know, the overall state for them is 0 because the charge is 0. You work out that X here is -1. What that means is oxygen here is -1. You do the same for all the elements in all the compounds. So if I look at this fellow, इसमें nitrogen 2 है मेरे पास और हाइड्रोजन 4 हैं, बट हाइड्रोजन एक्सेप्ट फॉर मेटल्स के साथ हर वक्त +1 होता है. तो ये मुझे पता है, ये मेरे रूल्स हैं. द रूल्स आर गोना बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हाइड्रोजन इज +1 ऑलवेज, ऑक्सीजन इज -2 एक्सेप्ट फॉर पेरोक्साइड्स, फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 इज कंपाउंड्स, ओवरऑल चार्ज इज 0, ग्रुप 1 इज +1, 2 इज +2, ग्रुप 3 इज +3, एंड others have variable oxidation states. And uncombined elements which are not bonded to any other element like this, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? दिस इज 0, and here H is +1 and I have 2 of them, and O is -2. So now if I look at all the elements I have nitrogen, hydrogen and oxygen. Nitrogen पहले था, अगर मैं ये मैथ करता हूँ, 2x + 4 = 0, so 2x = -4. So what is x equals to -2? So nitrogen -2 से क्या बना है? 0. हाइड्रोजन यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है और यहाँ भी +1 है. सो हाइड्रोजन एक में +1 है और एक और में +1 है, और वो दोनों बने क्या? फिर भी +1 बने, वहाँ कोई चेंज नहीं आया. और ऑक्सीजन यहाँ -1 है और राइट हैंड साइड पे क्या है? -2 है. सो नाउ आई रियलाइज कि चेंज कहाँ हो रहा है? चेंज नाइट्रोजन में हो रहा है और ऑक्सीजन में हो रहा है. एंड नाइट्रोजन में जा रहा है -2 to 0. ऑन द नंबर लाइन -2 से 0 जाना बढ़ना कहलाता है, इंक्रीज कहलाता है. सो दिस इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. सो हम बोलेंगे यहाँ कि the nitrogen in N2H4 is oxidized to the nitrogen element.
and like before somebody asked me कि यार aren't we write them as fours? Look, whenever we do oxidation states, we do it for each individual molecule, because अगर आप 4 भी करोगे तो नंबर तो ज़ीरो ही आना है. हम मॉलिक्यूल का करते हैं, कंपाउंड का. हम उसके कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन नहीं डालते हैं, बिकॉज दिस नंबर इज ओनली रेलिवेंट टू बैलेंस द इक्वेशन. दिस नंबर हैड नथिंग टू डू विद H2O2 एज अ कंपाउंड ऑन इट्स ओन. हाँ, उसके 2 चाहिए मुझे इस रिएक्शन में, लेकिन H2O2 की अंदर की केमिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज बाय मी पुटिंग इन 2 हेयर. हाँ, द प्रॉपर्टीज डू चेंज बाय दीज टूज, जिसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं. दे डिटर्मिन द प्रॉपर्टी, दे डिटर्मिन बॉन्डिंग, दे डिटर्मिन एवरीथिंग. रिमेंबर दैट गाइज, अ डिस्टिंक्ट इन केमिस्ट्री टर्मिनोलॉजी, द सबस्क्रिप्ट्स, जिनको हम छोटा नीचे लिखते हैं, दिस आर कॉल्ड सबस्क्रिप्ट्स, determine the chemical balance of what's happening inside. The number before in an equation is only found in equations. You will never say somebody say मुझे H2O2 चाहिए तो मुझे 2H2O2 लिख देता कोई नहीं. 2 सिर्फ इक्वेशन में आता है. बट लेकिन फॉर्मूला जब भी आपने दुनिया में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करनी होगी, आप H2O2 बोलोगे. विच इज़ वाई वैन वी डू ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन हम सिर्फ कंपाउंड की लेते हैं. हम ये 4 ये 2 का कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय बैलेंस करने के लिए. तो वो आर नॉट पार्ट ऑफ अस डिटर्मिनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट. देयर इज़ नो नीड टू यूज़ दैम इन डिटर्मिनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स. हाँ, किसी ने इस्तेमाल कर भी लिया ना, तो वो रिमेंबर द 2 here multiplies everything. So even if you did that 2, you will solve the whole thing, you will still get the oxidation state of -1, because whatever is true for one molecule of the compound is true for 2, 10,000, 50,000, all of them. Okay, ठीक है. And I think I have said this 4 times and I will say this again. Oxidation states are man-made. इंसान की इजाद है, ये साइंस नहीं है. It's not empirical science. It's our man-made invention so that we can label things. जिस तरह आपका नाम कुछ भी होता तो आप वही रहती. इंसान तो बदलता ना, नाम ने आपके माँ बाप ने नाम रखा है, ठीक है. So it is not completely arbitrary. Like for example, Imad, your parents could have named you any other name, but I bet they would not have named you Fatima. So it's arbitrary within a certain rules. They will say, yeah, he looks like a boy, must be a boy, let's name him a boy name. I'm being very crude, but you get the idea, right? So it's not fully arbitrary, it's arbitrary within a few set of rules. The rules had some reasoning behind so that we can remember some things. And the rules are कि यार देखो, since we know covalent ionic compounds में O-2 होता ही है, तो उसको ऐसा करते हैं, यहाँ -2 दे देते हैं. फिर हमने कहा यार हमें पता चला है बाद में कि यार कुछ नॉन मेटल्स भी ज़्यादा नेगेटिव हैं दूसरों से. बिकॉज अब आप जब बॉन्डिंग में पढ़ोगे आगे जाके तो यू रियलाइज कि कोवेलेंट बॉन्डिंग भी प्योरली कोवेलेंट नहीं होती है. अगर होती ना तो जब आप HCl गैस को पानी में घुलाते हो तो वो आयन्स नहीं बनता. आपने पढ़ा होगा एसिड्स का भी. सो वाई डू HCl गैस बिकम एक्वस एसिड इज बिकॉज Cl इज मोर नेगेटिव देन हाइड्रोजन, even though they're both covalent. So again, the question that Fatma asked is the reason why we have oxidation states, Fatma. Otherwise we could have just used electron transfer ना. Understand that oxidation state का मकसद ये था कि हमारे पास कोई तरीका आ जाए कोवेलेंट कंपाउंड्स को कुछ रिप्रेजेंटेशन देने का कि हाँ इनके चार्जेस बढ़े हैं कम हुए हैं. बट चार्जेस नहीं हैं. अगर चार्जेस होते तो हम 1+ और 2- लिखते. ये ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, इसलिए इनको हम +1 और -2 लिखते हैं. आप समझ, यू माइट थिंक दैट दिस इज टू कंफ्यूजिंग, बट रिमेंबर दैट यू हैव बीन glorified stuff to learn it in one, like make it simple. I don't know why, but it makes it easier for people to tell the rules or whatever else earlier कि भाई ये याद कर लो बस, हर वक्त -2 होगा, like in other O levels में also. And I'm just saying कि you have to clarify how you understand these things. The reason why I'm insisting on doing this chapter earlier is because मुझे ख्याल होता था कि बाद में भी मैं यही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक चला जाता हूँ जैन में, कि अभी तक बच्चों को वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा कि यार मतलब, बिकॉज
I guess fake chemistry is taught too often much in O levels, which becomes this. So understand that this oxidation number का एक मकसद था. मकसद यही है because it is covalent, so I had a way of assigning it. And the reason why I needed to assign this is because I want to be able to figure out redox reactions without having to worry about electron transfer. ये मकसद था कसम से, सिर्फ मेनली ये मकसद है. ठीक है, सिर्फ, और कोई मकसद नहीं है. बिकॉज अगर मैं आपको बोलूँ एंड आई विल शो यू कम्प्लीटली रिएक्शन इज कोवेलेंट. एक रिएक्शन है जिसमें सल्फर सॉलिड एंड क्लोरीन गैस बिकम इन कोवेलेंट कंपाउंड कॉल्ड SCl2. ठीक है, नॉट आयोनिक, कंप्लीटली कोवेलेंट. ना इसमें चार्ज है, ना इसमें चार्ज है, ना इसमें चार्ज है. अच्छा, इसमें ना गेन ऑफ ऑक्सीजन है, ना लॉस ऑफ हाइड्रोजन है. तो अगर ना गेन ऑफ हाइड्रोजन है, ना लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, तो बाय दैट डेफिनेशन ये रेडॉक्स नहीं है. फिर अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र. यार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहे. क्यों? बिकॉज असल में SCl2 is 2 Cls combined like this. One, two, three. So ये clearly showing you कि bonding क्या है इसमें, कोवेलेंट. और SCl2 के मैं अगर आपको दिखाऊं ना बॉन्डिंग, बिकॉज सल्फर इज इन ग्रुप 6 सो ओनली नीड्स टू शेयर 2. क्लोरीन इज इन ग्रुप 7 ओनली नीड्स टू शेयर 1. उनका ऑक्टेट भी पूरा हो गया. ऑक्टेट भी पढ़ा हुआ है आपने ओ लेवल्स में, पढ़ा है ना. तो ईच नॉन मेटल का ऑक्टेट भी पूरा हो गया. सल्फर के 2 वहाँ डाले थे, बाकी 4 बॉन्डेड नहीं हैं. तो सल्फर के गिर्द भी 8 हो गए, क्लोरीन के गिर्द भी 8 हो गए, यहाँ भी 8 हो गए. तो ये तो कोवेलेंट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ. तो अकॉर्डिंग टू ऑल डेफिनेशंस एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर इज़ नो वे टू प्रूव कि ये रेडॉक्स है कि नहीं है. देन नो वे टू टेल कि यार कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है. बट दिस इज़ सो सिमिलर टू H and Cl becoming HCl, और सल्फर एंड ऑक्सीजन बिकमिंग SO2, और क्या कहते हैं, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन बिकमिंग Cl2O. So how this also should be redox. To make this redox, we had to invent oxidation states. And उसके में हमें कुछ निकालने पड़े तरीके जो हम पढ़ाते नहीं हैं आपको अभी. बिकॉज हर रूल नहीं पढ़ा सकते. बिकॉज आई वांट टीच यू विद मिनिमम. The syllabus wants to teach you only a bit that covers 100% of what they want to test you and 95% of chemistry. But they're like, for example, here if I tell you that I knew कि chlorine का यहाँ is chlorine being more electronegative than sulfur is therefore assigned -1, and there are 2 of them, so sulfur must be +2. And using that, I will realize that sulfur went from 0 to +2 and chlorine from 0 to -1. Again, these are not charges. ये ionic compound नहीं है, ये covalent है. But that's why we need oxidation states. And once we realized we need oxidation states, they made it even easier to determine more complicated redox reactions. How complicated redox reactions? Things like, जब मैं बोलूँ आपको कि यार एक सवाल है मेरे पास, plus this is something that we're going to look at in detail tomorrow also. मैं आपको बोलता हूँ यार मेरे पास ये इक्वेशन है और ये रिडॉक्स इक्वेशन है, और इसमें बताओ ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, रिड्यूस कौन सा हुआ है. एंड विदाउट ऑक्सीडेशन नंबर्स यू कैन नॉट टेल मी कि इसमें ऑक्सीडाइज रिड्यूस कौन सा हुआ है. यू माइट बी एबल टू टेल मी ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, बट यू वोंट बी एबल टू टेल मी विच एलिमेंट गेट्स रिड्यूस्ड विदाउट यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स. यू कैन नॉट यूज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. दैट पीपल विल से दिस कि यार देखिए ना यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पानी है. इज इन दिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन? दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. is not, oxygen is not termed as oxidation. So there are many additions of oxygen which are not termed as redox, because if you think about this, hydrogen का क्या होगा oxidation state पानी के अंदर? If I ask you कि मैंने hydrogen से, and me I'm showing you all to try to open your minds about things. That's the purpose of doing this right now. मैं बोलूँ यार मैंने हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन आयन से पानी बनाया है. जस्ट मैं सिंपली क्रूडली बता देता हूँ. आप बोलोगे यार हाँ ऑक्सीजन तो गेन किया है,
So isn't this gain of oxygen? Therefore, isn't this oxidation for hydrogen? It's not. The reason why it's not is because यहाँ each hydrogen is +1 और यहाँ each hydrogen is also +1. And if I look at oxidation numbers, हाइड्रोजन का यहाँ और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, और अगर चेंज नहीं हुआ तो इट्स नॉट ऑक्सीडेशन एंड इट्स नॉट रिडक्शन. इफ इट स्टेज कांस्टेंट, इट इज not undergoing reduction or oxidation. But some people are going to stick to the old definition. Remember, addition of oxygen was how in science की history में हमने oxidation को define करना शुरू किया, लेकिन हमें देखा कि हम इसकी definition बेहतर करके और चीज़ें भी ला सकते हैं. Hence the newest definition is anything that increases oxidation number is being oxidized. And so that's why oxidation numbers are so important to us to be able to check this out, and we will do this tomorrow, by the way. But my focus was right here के talk to you guys about के भाई ये देख लें आप ज़रा, ये oxidation state का काम यहाँ आता है. And so that's what I was driving at, and we can look at this tomorrow. I can definitely tell you that right now manganese here is +7, ठीक है, and यहाँ +2 है, because I've done this enough times. But if you do the math for this, by our rules that oxygen is -2 and the whole sum is the sum of the charge, you realize it's +7, and iron is +2 here and it's +3 here. And so what you realize is that iron की oxidation state बढ़ी है और manganese की element Mn, not the whole thing, Mn की oxidation state कम हुई है. Okay, now the difference between -2 and 2- is that 2- can only and only be applied to ions के अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो वो आयोनिक है, तो उसमें ऑक्सीजन का चार्ज 2- चार्ज है और उसका -2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है. लेकिन पानी में बिकॉज वो कोवेलेंट है, O का कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, लेकिन -2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिर भी है. चार्ज सिर्फ आयंस में होता है. और व्हेन आई राइट 2- उसका मतलब होता है कि O में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं. Okay, now somebody asked a very fun question. Does it look easy up till now? Well, if I will guarantee you this much, if you make sure your fundamental understanding of the particles that make up chemistry, meaning ions, atoms, molecules, charges, if just that and what goes inside an atom in terms of protons, electrons, if all of that is completely doubtless and you understand it thoroughly, उसके बाद केमिस्ट्री का जो भी नई चीज़ कराऊंगा आपको एस लेवल में, वो आपको आसान लगेगी, ये गारंटी है. ठीक है सफ़ा, दैट आंसर्स अ प्राइवेट क्वेश्चन दैट नोबडी एल्स कुड सी. एनीवेज, आई एम जस्ट एनीवेज, सो हाँ, does that answer your question, Heather Naqvi, the difference between 2- and -2? पता है 2- क्या है? 2- ये है कि जी इस पार्टिकल में 8 प्रोटॉन हैं, 8 न्यूट्रॉन हैं, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन हैं. प्रोटॉन को हम प्लस लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन को माइनस लिखते हैं. तो अगर मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ अपनी क्लास 1 में 2 में मेरी बेटी है, मैं बोलूँगा जी ये प्लस एक चीज़ है मेरे पास, और मेरे पास 8 प्लसेस हैं, और मेरे पास 3 4 5 6 7 8 9 10 नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, 8 पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं. यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव आर नॉट नंबर, दे आर जस्ट द लेबल ऑफ द पार्टिकल. और जब मैं कैंसिल आउट करना शुरू करता हूँ तो ईच प्लस कैंसल्स 1 नेगेटिव. एंड दिस इज हाउ दे शुड हैव टॉट दिस टू यू इन ओ लेवल्स. सो व्हाट्स लेफ्ट इज 2-. एक माइनस ये, एक माइनस ये. हाँ, अगर मैं बोलता माइनस की जगह x होता तो आप क्या लिखते? जब 2x बचते हैं इनमें तो आप लिखते ना 2x. उसी तरह ही 2- लिखा जाता है, and it's only for charges. -2 on the other hand is a man-made oxidation state that
H2O में भी -2 है, यहाँ मैंगनीज में भी -2 है, पानी में भी -2 है, तो -2 का काफ़ी जगह काम आता है. That's the point. Just to highlight and underscore this point, one last example I want to talk about is 6HI plus H2SO4 becomes 3 iodine and 1 sulfur and 4 waters. And the point here is that the way this works is, again, 6 and 3 are coefficients to balance this equation. They are not part of the species. So I'm only concerned with HI, H2SO4, I2, sulfur and H2O. Not 6 HI, neither 3, neither 4. Those are just needed to balance the equation. मैं अब हमारा सवाल ये था कि इसमें कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है और कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है. उसके लिए आपको इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने पड़ेंगे एंड देन उसमें रूल लगेंगे. रूल क्या है? H इज़ ऑलवेज +1 इन अ कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर हाइड्राइड्स. तो H सब में +1 डाल दिया मैंने. O एक्सेप्ट फॉर पेरोक्साइड्स इन कंपाउंड्स O विल बी -2, मीनिंग यहाँ भी O -2 है और यहाँ भी O -2 है. तीसरा रूल क्या था? अनकम्बाइंड एलिमेंट्स विल बी 0, मीनिंग भले ये 2 आयोडीन हैं, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, इसमें कोई और एलिमेंट नहीं है, तो वो भी 0 हुआ. तो नाउ बचा क्या चेक करने का? बचा, एंड आई एम गोना यूज अ ब्लू मार्कर नाउ, दिस आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर. हाँ, ये निकालने हैं. पहले निकालेंगे किस तरह हम? अगर और हम एक HI को देखेंगे, एक HI में एक H +1 है, तो I क्या हुआ? यहाँ -1, बिकॉज टोटल करने के बाद इसका चार्ज 0 होना चाहिए. एंड देन यहाँ इस पूरे में हमें नहीं पता है सल्फ़र क्या है, बट हम वही तरीका लगाएंगे ना. कौन सा तरीका है? कि जी मेरे पास 2 हाइड्रोजन्स थे, दोनों +1 थे. कंपाउंड के अंदर एक सल्फ़र है और ऑक्सीजन 4 हैं, E और चारों के चारों -2 हैं, और टोटल चार्ज इसका जी 0 है, बिकॉज टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ 0, बिकॉज यहाँ चार्ज नहीं था कोई. सो मैं इनको अब ऐड करूँगा. जब मैं इनको ऐड करके सॉल्व करूँगा तो मेरा जो है ना जी x, वो निकलेगा +6. सो व्हेन आई लुक एट दिस एक्सप्रेशन, व्हाट आई रियलाइज इज दिस, दैट इसमें क्या हो रहा है? सल्फर, पहले तो आयोडीन देते हैं. आयोडीन -1 से, ईच आयोडीन -1 से यहाँ क्या हो रहा है? 0. और सल्फर क्या हो रहा है? +6 to 0. यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, -1 से 0 का मतलब बढ़ना, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन. तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कि आयोडीन inside HI is being oxidized. और यहाँ सल्फर +6 से 0 हुआ है. नंबर लाइन में इसको गिरना कहते हैं. अगर आपने वर्टिकल नंबर लाइन बनानी है समझने के लिए, तो वो भी आसानी होती है. 0 यहाँ होता है, 6 + 6 वहाँ है, -1 यहाँ है. आयोडीन -1 से 0 गया है, ऊपर जा रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन है. सल्फर 6 से 0 आ रही है, वो गिर रही है, वो रिडक्शन है. ऑक्सीजन में कुछ नहीं हो रहा हैदर, जिसने आपने लिखा, बिकॉज यहाँ भी वो कंबाइंड था -2 से, यहाँ भी -2 है. डोंट अज्यूम कि दिस इज -8. नो, 4 होंगे -8. ईच ऑक्सीजन इज -2, और हम ईच को देखते हैं, एक को देखते हैं. ऑलराइट, इट्स ऑलवेज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. आई होप दिस maybe helps clarifying some concepts here, and I'm going to end the class here, because as much as I love your faces, which I don't see any of, and as much as you'd hate my face, which you see a lot of, I want to end the class on a good note, and I hope that you guys remember this, and tomorrow we'll do balancing equations.